A very good morning to all students. Let's we discuss the sum of the case studies, value based and multidisciplinary question, which already comes in your last few year question paper conducted by CBSE. So you know very well we discussed the case studies related to class 12 business studies, and in this video we discussed a lots of the case study from the different chapters, and most of the question asked by the CBSE in the last few years. As you know very well, in the last few videos we discussed the model paper issued by CBSE for the academic year 2020-21, and this model paper contains a 34 question. Out of them 6 to 10 question are from the case studies. So it is very important to studied after the theoretical parts given in the book. Let's we discuss the case study from the different chapters. So without creating any delay, let's we discuss the case studies from the different chapters. एक कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपना 1% जो सेल्स का है वो एनजीओ को डोनेट करेगी. सर्विंग मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, दिस इनिशिएटिव बाय द कंपनी वाज हाईली अप्रिशिएटेड. और इस इनिशिएटिव को कंपनी का बहुत सारा पब्लिक ने मोटिवेट किया, अप्रिशिएट किया, और देयर सेल्स इंक्रीज बाय 10%. उसका सेल्स 10% इंक्रीज हो गया. नहीं, कंपनी ने अपने सेल्स का 1% एनजीओ को डोनेट किया, जो एनजीओ जो है वो मेंटली डिसेबल पर्सनस के लिए बनाया गया था. और ये इनिशिएटिव काफ़ी अप्रिशिएटेड हुआ और इससे उसका सेल्स बढ़ गया 10% से. द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव डिपिक्टेड इन द गिवन केस. You know very well, they are basically 3 objective of the management. Social objective. So in this video, in this question, you can see that the social objective completed by the company, because they are basically 3 objective: organizational objective, social objective and personal objective are there. Organizational objective, that is a profit, growth and survival. Second is a social objective, it means doing a good thing for the society. And personal objective means meeting the personal need, fulfilling the personal need of the people of the organization. So the first answer of this case study, that is an social objective. Second is highlight the value which the company desired to emphasize through this activity, that is a responsibility towards society. Okay, now we are moving to the next question, question number 11. एंड सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग. मैकडोनाल्ड मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इट्स इंटीग्रेंट्स ऑफ फिंगर चिप्स इन इंडिया. मैकडोनाल्ड आप देखा होगा अपने स्टोर्स, वहाँ पे उन्होंने अपने इंटीग्रेंट्स जो फिंगर चिप्स जो बनाता है प्रोडक्ट है, उसके इंटीग्रेंट्स को चेंज किया. विच कैरेक्टरिस्टिक्स of management is highlighted in the given statement, and identify the dimension of business environment which is responsible for this step of McDonald. पहला क्वेश्चन है कि मैकडोनल्ड ने, एक ही लाइन में आप देख लो, एक ही लाइन में लिखा है मैकडोनल्ड ने अपनी फिंगर चिप्स के इंटीग्रेंट्स में कुछ चेंजेस किया इंडिया में. तो पहला चीज़ ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, दैट इज एन मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. यू नो वेरी वेल, मैनेजमेंट इज चेंजेबल, मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट हमेशा हर काम को करता है बट अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक इन्वायरमेंट. एंड बिजनेस इन्वायरमेंट के 5 डायमेंशन होते हैं: लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. तो यहाँ पूरी तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक सोसाइटी की बात हो रही है. पर्सन टू पर्सन लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस अलग होते हैं. तो फॉरेन में फिंगर चिप्स का इंटीग्रेंट्स अलग हो सकता है, हमारे इंडिया में अलग हो सकता है. तो अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखें तो इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट सोसाइटी. दैट्स व्हाई इट इज अफेक्ट द सोशल इन्वायरमेंट. नाउ द नेक्स्ट विल बी अ क्वेश्चन नंबर 9. व्हाइल selecting employees, X Limited is ignoring applicant from women and weaker section of the society. What is wrong with the selection process of X Limited? What should be possible remedy?
सो उसमें कह रहा है कि जब हम किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं तो एक्स लिमिटेड जो होता है वो इग्नोर करता है एप्लीकेंट को फ्रॉम वुमेन एंड विमेन सेक्शन, यानी कि जब एक्स लिमिटेड एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करता है तो वुमेन को और सोसाइटी के वीकर सेक्शन को इग्नोर करता है। सो द फर्स्ट इज व्हाट इज रॉन्ग विद द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एक्स लिमिटेड। यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्या गलत है सिलेक्शन प्रोसेस एक्स लिमिटेड के, एंड व्हाट शुड बी द पॉसिबल रेमेडी, और उसके लिए पॉसिबल रेमेडी क्या हो सकती है। सो द आंसर नंबर 1 इज द सिलेक्शन पॉलिसी ऑफ द एक्स लिमिटेड इज़ नॉट गुड। एक्स लिमिटेड की जो सिलेक्शन पॉलिसी है वो सही नहीं है, क्योंकि इट इज़ इग्नोरिंग द वैल्यूज़ ऑफ इक्वालिटी एंड द कंपनी इज़ ऑल्सो जेंडर बायस्ड। यानी यहाँ पर कंपनी इक्वालिटी ट्रीट नहीं कर रही है एंड कंपनी ऑल्सो जेंडर बायस्ड है। मीन्स देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द creating a differences between the men and women, and also company focus on the gender as well as the इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन सा रिचर सेक्शन है, कौन सा वीक सेक्शन है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रखना चाहिए कंपनीज को। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द पॉसिबल रेमेडी। इसके लिए अच्छी रेमेडी क्या हो सकती है। कंपनी शुड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द ऑल प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। कंपनी को सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, चाहे वो उसका प्रेजेंट कैंडिडेट हो चाहे उसका प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हो। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट, यहाँ पर इक्वालिटी लानी चाहिए। सेकंड, इसकी रेमेडी यही है कि जो भी प्रेजेंट कैंडिडेट हों और जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट हों सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉलो अप करो, सोशल एनवायरनमेंट पे फोकस करो, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो लेट्स वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20. The question number 20 is, Ramesh, the manager of the personal department, instruct his subordinate that the company has decided not to employ any person who is less than 21 years of age. Ramesh also assigns duties, authorities and creates accountabilities of the person to whom work has been handed over. कह रहे रमेश एक मैनेजर है पर्सनल डिपार्टमेंट का, जिसने इंस्ट्रक्ट किया अपने सबॉर्डिनेट को कि कंपनी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू एम्प्लॉय एनी पर्सन, कंपनी किसी भी ऐसे पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करेगी हु इज़ लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज, जो 21 साल से कम की हो। रमेश ऑल्सो असाइन ड्यूटीज़ अथॉरिटीज़। रमेश ने एकदम क्लियरली बताया कि उसको असाइन ड्यूटीज़ किया जाएगा, अथॉरिटीज़, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाएगी ऑफ द पर्सन टू हुम वर्क हैज़ बीन हैंडेड ओवर। ओके, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्लियरली क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा, नेम द टाइप ऑफ प्लान हाईलाइटेड इन द गिवन सिचुएशन बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम क्वेश्चन। आपको क्वेश्चंस में जो लाइन है उसको कोट करते हुए बताना होगा कि ये टाइप प्लान का कौन सा टाइप है। यू नो वेरी वेल दे आर बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ द प्लान, दैट इज एन प्लान के अगर टाइप की बात करें तो बजट, प्रोग्राम, स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज़ प्लान, पॉलिसी, रूल, तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ द प्लान है। तो अगर हम ये लाइन आप क्लियरली देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सनल डिपार्टमेंट जो रमेश जो है वो पर्सनल डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं जो रिक्रूट करते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसे पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करेंगे जिसकी एज 21 ईयर्स से कम की हो। तो एक तरह से यहाँ पर वो एक पॉलिसी बना रहे हैं, एक पॉलिसी है कि नॉट टू एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज़ लेस देन 21 ईयर ऑफ एज। The second is also identify the process through which the Ramesh assign duties, authority and create accountability. आपको उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है थ्रू विच रमेश को अथॉरिटी और ड्यूटीज़ असाइन की जाएंगी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट की जाएगी। लिखा हुआ है क्लियरली, रमेश ऑल्सो असाइन ड्यूटीज़, अथॉरिटी एंड क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी of the person to whom work has been handed over. So the answer is delegation of authority. You know very well, delegation of authority is a process in which Ramesh assign duties, authority and create accountability. Now we are moving to the question number 21. A foreman did an aggressive research on a new cost saving production technique and suggests the same to his production manager. However, the manager did not pay any attention to his suggestion. Moreover, he also warned him not to come with any suggestion in future.
कह रहा है एक फोरमैन है जो एग्रेसिव रिसर्च कर रहा है ऑन अ न्यू कॉस्ट सेविंग प्रोडक्शन टेक्निक, ताकि हम एक ऐसा प्रोडक्शन टेक्निक बनाएं जिससे हमारा कॉस्ट कम से कम हो, एंड सजेस्ट द सेम टू हिज प्रोडक्शन मैनेजर, और उसने यही सेम चीज़ अपनी प्रोडक्शन मैनेजर को भी सजेस्ट की है. However, the manager did not pay any attention to his suggestion. इसके अलावा मैनेजर ने उसकी किसी भी सजेशन पे फोकस नहीं किया. सिंपल सा लिखा है कि एक फोरमैन है जिसने एक एग्रेसिव रिसर्च किया कि कैसा प्रोडक्शन टेक्निक डेवलप करें जिससे कॉस्ट कम हो, और उसने सेम चीज़ें प्रोडक्शन मैनेजर को भी सजेस्ट की, लेकिन मैनेजर अभी तक उस सजेशन पे ध्यान नहीं दे रहा है. एंड ही ऑल्सो वॉन्ट हिम नॉट टू कम विथ एनी सजेशन इन फ्यूचर, और उसने वॉन्ट भी किया, अपने प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने फोरमैन को वॉन्ट भी किया कि दोबारा से कभी अपने सजेशन लेकर मत आना. देखिए, एक तरह से सजेशन न लेना, फिर सजेशन के बाद उसके साथ बुरा व्यवहार करना, बैड बिहेवियर करना, ये भी सही नहीं है. सो इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बिंग वायलेटेड बाय द मैनेजर, एंड नंबर सेकेंड, इज मैनेजर जस्टिफाइड बाय दिस एक्ट. तो देखिए, पहला तो सिंपल सी बात है कि जब कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ से सजेशन वेलकम नहीं करता, उसको उनके सजेशन के लिए अप्रिशिएट नहीं करता, रिवॉर्ड नहीं देता, इट मीन्स ही वॉयलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ एन इनिशिएटिव. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएटिव, every employer must welcome the suggestion and recommendation from their employees. If employer does not give any priority to the suggestion of his employee, so in this situation एक तरह से जो मोराल है, जो काम करने की जो इच्छा है एम्प्लॉयज़ की, वो कम हो जाती है. नंबर सेकेंड इसमें लिखा है, इज मैनेजर जस्टिफाइड बाय दिस एक्ट. क्या मैनेजमेंट अपने काम को जस्टिफाई कर सकता है? तो इसमें क्लियरली लिखा है, द मैनेजर इज नॉट जस्टिफाइड बाय दिस एक्ट. ही शुड हैव केयरफुली लिसन टू द सजेशन ऑफ द फोरमैन इवन थ्रे नॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड. आप कम से कम मैनेजमेंट को कम से कम उसकी बातें सुननी तो चाहिए. आप बाद में उस काम को अप्लाई करिए मत करिए, लेकिन सुनिए. एंड शुड हैव ऑल्सो इनकरेज हिम टू कम, और उसको इनकरेज करिए कि आप फिर से आइए कुछ और सजेशन के साथ. सच बिहेवियर ऑफ द मैनेजर लिमिट्स द क्रिएटिविटी अमंग द एम्प्लॉय. इस तरह की चीज़ें एम्प्लॉयज़ के बीच में क्रिएटिविटी क्रिएट करती हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इज, इन द रिसेंट टाइम द गवर्नमेंट हैड इंक्रीज द प्राइस ऑफ डीजल एंड LPG. फर्स्ट, विच की कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्कस इन द गिवन केस. सिंपल सा लिखा है कि इन द रिसेंट टाइम, अभी तुरंत गवर्नमेंट ने LPG और डीजल का दाम बढ़ा दिया. तो गवर्नमेंट ने बढ़ाया तो एक तरह से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी कहला सकता है. बट यहाँ पे ज़्यादा पोर्शन जो फोकस किया गया वो लिखा है गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया. सेकेंड है, हाउ विल इट अफेक्ट द सोसाइटी एट लार्ज. यस, it is a macro environment, it is a part of the macro, it is not a micro environment. Rise in the price of the administrative product like diesel and LPG will adversely affect the society. It will lead to the general rise in the price level and will increase the cost of living and fall in the standard of living of people. Okay, so this is the solution of the question number 22. So let's we move to the question number 23. The question number 23 is, Mr. Rajesh, a supervisor in a manufacturing unit, humiliates a worker for a very minor mistake in front of the other worker. Which value is he lacking? कह रहा मिस्टर राजेश एक सुपरवाइज़र हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के. उन्होंने वर्कर्स को ह्यूमिलेट किया, जो वर्कर्स उनके यहाँ काम करते हैं. ह्यूमिलेट मतलब उनको डांटना या उनसे कुछ भी बात कहना. फॉर अ वेरी माइनर मिस्टेक, छोटी छोटी बातों के लिए उनको ह्यूमिलेट करना, और वो भी इन द फ्रंट ऑफ द अदर वर्कर्स, सारे वर्कर्स के सामने. एंड द क्वेश्चन इज, विच वैल्यू इज ही लैकिंग. कौन सी वैल्यू यहाँ मिसिंग है? एंड द आंसर इज रिस्पेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल डिग्निटी. यहाँ पे जो इंडिविजुअल डिग्निटी है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है. सो द क्वेश्चन नंबर 24 इज, employee working in a company wastes a lots of time in searching for tools as per is no fixed places for keeping them.
कह रहा है एम्प्लॉई जो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो किस चीज़ों में, फॉर सर्चिंग द टूल्स बिकॉज देर इज अ नो फिक्स प्लेस फॉर कीपिंग देम, क्योंकि उनको एक जगह रखने का कोई प्लेस नहीं है. सो द क्वेश्चन इज विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज बिंग वायलेटेड इन गिवन स्टेटमेंट. आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो फ्यूल ने दिया है वो यहाँ वायलेट हो रहा है. आइडेंटिफाई द वैल्यू बिंग डिस्कार्डेड. सो द क्वेश्चन आंसर इज द प्रिंसिपल वायलेटेड इज ऑर्डर. You know very well, according to the principle of order given by the handy fuel, there should be a proper place for keeping every type of the tools and instrument in the especially in the फैक्ट्री. यानी हर फैक्ट्री में इंस्ट्रूमेंट को रखने का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए. एज वेल एज वो सारी चीज़ें उसी जगह पर रखी भी होनी चाहिए. नंबर सेकेंड इज क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वैल्यू बिंग डिस्कार्डेड. यहाँ पे कौन सी वैल्यू डिस्कार्ड हुई है, दैट इज एंड द वैल्यू डिस्कार्डेड इज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. बिकॉज बहुत सारा टाइम तो उस चीज़ में वेस्ट हो जा रहा है कि सामान कहाँ रखा है, टूल्स कहाँ रखे हैं, इक्विपमेंट्स कहाँ रखे हैं. सो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं वेस्ट हो जा रहे हैं. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 25 इज अ AC manufacturer has starting using a new technology विच इज़ कॉस्टली. एक AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने एक न्यू टेक्नोलॉजी हायर की जो बहुत ही कॉस्टली है, बट डज नॉट मेक यूज़ ऑफ एनी हार्मफुल गैसेस. लेकिन उस AC में किसी प्रकार के हार्मफुल गैसेस का यूज़ नहीं किया गया है. तो सो द क्वेश्चन इज विच ऑब्जेक्टिव द मैन्युफैक्चरिंग ट्राई टू अचीव. इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है. सेकेंड, आइडेंटिफाई द वैल्यू बिंग फॉलोड. आपको ये बताना है कौन सी वैल्यू यहाँ पे फॉलो की जा रही है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन सी दैट एक AC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, ठीक है, और जो कॉस्टली है, लेकिन उससे हार्मफुल गैसेस भी यूज़ नहीं हो रहे हैं या सीक्रेट नहीं हो रहे हैं. तो वी कैन से दैट यहाँ पर एक सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है. सो द आंसर इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट is being achieved, as well as environment protection. यहाँ पे environmental protection पे ज़्यादा फोकस किया गया है, as well as the economic factors. So we can say that the right answer is of this question is the social objective with environment protection. Question number 26. An American shoe manufacturing company launched a new range of footwear with imprints of Indian lords. The company had expected that it would impress the Indian living in America. However, the Indian community was in big shock, mixed with anguish and anger. As a result, the company had to withdraw the entire stock from the market and also apologized for this. एक अमेरिकन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने अपना एक फुटवियर का न्यू रेंज लॉन्च किया, लेकिन उसमें जो इंडियन लॉर्ड्स थे, मतलब भगवान देवी देवताएं हैं, उनके इम्प्रिंट्स लिए गए. द कंपनी हैड एक्सपेक्टेड इट वुड इम्प्रेस द इंडियन लिविंग इन अमेरिका. यहाँ इनको ये लगा कि जो अमेरिका में इंडिया के लोग रहते हैं वो इस काम से काफ़ी इम्प्रेस होंगे. बट इंडियन कम्युनिटी काफ़ी शॉक्ड हो गई और उनके अंदर गुस्सा आ गया, जिसके रिज़ल्ट में कंपनी ने डिसाइड किया कि वो सारा का सारा स्टॉक मार्केट से बाहर ले लेगी और उसके लिए अपोलाइज कर रही है. आपको ये बताना है कि इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा एस्पेक्ट डिस्क्राइब किया गया, विच एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईलाइटेड इन द गिवन केस. सो द आंसर इज सोशल इन्वायरमेंट. सेकेंड, why is it necessary for the business enterprises to analyze this environment. ये सबसे important है, social environment को analyze करना क्यों ज़रूरी है. because you know very well social environment की अगर हम बात करें सोसाइटी के आसपास कई तरह के कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कई तरह की चीज़ें हमारे आसपास घूमती रहती हैं. सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एवरी मैन्युफैक्चरर, एवरी मार्केटर टू एनालाइज the social environment very carefully. So it is necessary for the business enterprise to analyze social environment as it determines the product, service and standard of conduct that they are acceptable to society or not. आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर
सोसाइटी कौन से कस्टम्स, कौन से प्रोडक्ट या चीज़ें एक्सेप्ट करेगी या उसको रिजेक्ट कर देगी। इसमें थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफाई द वैल्यूज इग्नोर्ड व्हेन द कंपनी लॉन्च फुटवियर विथ इम्प्रेट्स ऑफ द इंडियन लॉर्ड्स। यहाँ बताना है कि कंपनी ने जब फुटवियर लॉन्च किया इंडियन लॉर्ड्स के इम्प्रिंट्स से, तो इसमें कौन सी वैल्यूज़ इग्नोर की गई है। इसमें पहला है रिस्पेक्ट फॉर बिलीव्स एंड कल्चर ऑफ वेरियस रिलीजन, क्योंकि हर धर्म के लोगों का अपना अपना मान्यताएं हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं कि वो कौन कौन सी जगह पे, अगर भी उन्होंने कोई ऐसी चीज़ लॉन्च की होती जैसे टी शर्ट लॉन्च की होती, तो टी शर्ट पे लोगों को उतना वो कह सकते हो ना, इतना उनको ऐतराज़ नहीं होता, उनको इतना दिक्कत नहीं होती, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, वो एक्सेप्टेबल होता। बट फुटवियर में भगवान जी की फ़ोटोज़ को यूज़ करना, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। द क्वेश्चन नंबर 27, हरीश इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड लीडर। हरीश जो है वो एक बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड लीडर है। ऑल हिज सबऑर्डिनेट रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही डज नॉट फोर्स हिज ओपिनियन ऑन अदर्स। मीन्स सारे सबऑर्डिनेट उसको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो कोई भी अपनी चीज़ें, कोई भी अपना ओपिनियन लोगों पे थोपता नहीं है, फोर्स नहीं करता है। एंड लिसन टू देयर सजेशन एज वेल एज प्रॉब्लम्स बिफोर टेकिंग डिसीजन। और वो अपने सारे सबऑर्डिनेट्स से सजेशन लेता है, प्रॉब्लम्स को सुनता है किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। सो द क्वेश्चन इज विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज बिंग डिस्कस्ड है। बहुत ईजी है। इन दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट द डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप विल बी फॉलोड एज वेल एज यहाँ पे ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट एंड कंसर्न जैसे वैल्यूज़ को भी फुलफिल किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, ये सब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। कृति परचेज सम species being claimed as pure by the seller. However, a laboratory test showed that those were adulterated. कह रहा है कृति ने परचेस किया कुछ स्पाइसेस जिसमें क्लेम एज प्योर बाय द सेलर, जिसे सेलर ने प्योर क्लेम किया था, लेकिन लेबोरेटरी टेस्ट में पता चला कि वो एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट है। आपको ये बताना है मेंशन 2 रेमेडीज विच शी कैन गेट फ्रॉम द कंज्यूमर कोर्ट टू गेट द प्रोडक्ट रिप्लेस विद द न्यू वन। यहाँ पे वो क्या कर सकती है, जो ख़राब प्रोडक्ट है उसे सही प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस किया जा सकता है जो कि फ्री हो एनी काइंड ऑफ द डिफेक्ट, टू गेट द रिफंड ऑफ द प्राइस पेड फॉर द स्पीसीज। और दूसरा उससे ये हो सकता है कि जो प्राइस है उससे रिफंड मिल सकता है। और यहाँ वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, विच वैल्यूज़ आर बिंग वायलेटेड हेयर। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ वायलेटेड हो रही हैं, दैट इज़ एन प्योरिटी, प्योरिटी क्योंकि प्रोडक्ट एडल्ट्रेटेड है। सेकंड हॉनेस्टी, क्योंकि सेलर ने ये इन्फॉर्मेशन सही ढंग से कृति को या परचेजर को कम्युनिकेट नहीं की थी। ओके, नेक्स्ट विल बी अ क्वेश्चन नंबर 29। रैपिड टूर्स लिमिटेड इज अ ट्रैवल एजेंसी विच बुक्स रेल टिकट ऑन कमीशन बेसिस. It takes 2 days for Rapid Tour to get the tickets from railway reservation counter and deliver this ticket to the consumer. In the last 1 year, there has been drastic decrease in its business as most of the consumer have shifted to Satya Tours and Travels, जिसका नाम another travel agency which provide the ticket within half an hour through use of network. इसमें clearly लिखा है रैपिड टूर्स लिमिटेड एक ट्रैवल एजेंसीज़ है जो कि ट्रेन की टिकट्स बुक करते हैं, रेल की टिकट्स बुक करते हैं कमीशन बेसिस पे। ये जनरली टेक्स 2 days फॉर द रैपिड टूर टू गेट द टूर टिकट फ्रॉम द रेलवे रिजर्वेशन काउंटर एंड डिलीवर द टिकट टू द कंज्यूमर। यानी वो जनरली 2 दिन लेता है कि वो अपने कंज्यूमर का जो भी कोई टिकट है रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट कराने में और उसको अपने कंज्यूमर तक डिलीवर करने में वो 2 दिन लेता है, 2 days. बट कुछ इन द लास्ट 1 year देयर हैज़ बीन अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन द बिजनेस एज मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर हैव शिफ्टेड टू सत्या टूर्स एंड ट्रेवल्स। यानी बहुत सारे कंज्यूमर जो है वो सत्या टूर्स एंड ट्रेवल की तरफ शिफ्ट कर गए हैं विच प्रोवाइड द टिकट्स विद इन हाफ एन आवर यूज़ ऑफ इंटरनेट। और जबकि आप देख रहे हैं उसने सिर्फ आधे घंटे में ही
टिकट बुक करने का काम कर दिया है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से जाकर टिकट कराते हैं तो आपको एक दिन वहाँ लग जाता है, फिर एक दिन आपको टिकट डिस्पैच करने में लग जाता है अपने। लेकिन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट सिस्टम, यू नो वेरी वेल, सत्या टूर्स एंड ट्रैवल क्या करता है, घर बैठे ही अपने शॉप से ही वो क्या कर सकता है, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकता है और ऑनलाइन ही अपने कंज्यूमर को वो टिकट सेंड कर सकता है, तो जिसमें आधा घंटा ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। सो यहाँ क्वेश्चन ये बोला है, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज बिंग ओवरलुक्ड बाय द रैपिड टूर्स लिमिटेड। यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट का कौन सा कॉम्पोनेंट है जो रैपिड टूर्स लिमिटेड ओवरलुक कर रही है, यानी नहीं कर पा रही है, फुलफिल नहीं कर पा रही है। सो द राइट आंसर इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सो यू कैन सी दैट पहले का ज़माना कुछ और था, लेकिन आफ्टर सम टाइम यू कैन सी दैट टेक्नोलॉजी डे बाय डे लेटेस्ट होती जा रही है। टेक्नोलॉजी का नाम ही है चीज़ें चेंज होना। सो द सेकेंड इज विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट इज बिंग वायलेटेड बाय द रैपिड टूर्स लिमिटेड। इसमें कौन सा मैनेजमेंट का करेक्टरिस्टिक्स वायलेट हो रहा है। सो दैट द मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। यू नो वेरी वेल, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है बिकॉज इट्स चेंजेबल। ये टाइम टू टाइम क्या होने लगता है, चेंज होता है। सो फर्स्ट का आंसर है which component of business environment, that is a technological environment, and which characteristics of the management, that is a management is a dynamic function. Okay, so next we move to the question number 30. Shyam is a salesman in a water purifier company. Shyam एक salesman है water purifier company में. He made a false claim to customer about the quality of the water purifier. ठीक, in order to make sales, which quality and value is lacking in Shyam? श्याम एक सेल्समैन है वाटर प्योरीफायर कंपनी में। उसने गलत क्लेम किया कस्टमर को अबाउट द क्वालिटी ऑफ द वाटर प्योरीफायर। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक सेल्स विच क्वालिटी ऑफ वैल्यू आर टेकिंग। सिंपल सा, हॉनेस्टी इज लैकिंग। अ गुड सेलमैन मस्ट बी हॉनेस्ट। एक अच्छा सेल्समैन वही है जो सही हॉनेस्ट होना चाहिए। ही शुड नॉट ट्राई टू विन कस्टमर थ्रू वॉल्स एंड मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन। उसे कभी भी अपने कस्टमर से को सामान नहीं बेचना चाहिए जिसको उसने गलत और मिसलीड करके रिप्रेजेंट किया। जैसे कोई सेल्समैन है जिसने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई गलत इन्फॉर्मेशन या मिसलीड इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की हो जिससे कंज्यूमर कंफ्यूज हो गया, सो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। 31, एम्प्लॉयज़ have to strictly follow the plans formulated by top level and deviations are considered to be highly undesirable. Which limitation of planning is highlighted in given a statement? Can an employee have to strictly follow the plans? Employees को strictly किसी भी प्लान को फॉलो करना चाहिए जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। एंड डेविएशन आर कंसिडर्ड टू बी हाईली अनडिज़ायरेबल। और प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो भी डेविएशन आ रहा है वो किसी भी तरह से डिज़ायरेबल नहीं होगा। ये लाइन बहुत ही क्लियर है कि एम्प्लॉयज़ को टॉप लेवल के थ्रू जो भी प्लान्स फॉर्मुलेट किया गया है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, और जो डेविएशंस हैं, यानी डेविएशन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द प्लान परफॉर्मेंस एंड एन एक्चुअल परफॉर्मेंस, वो हाईली अनडिज़ायरेबल है, वो कंपनी एक्सपेक्ट नहीं करती। सो क्वेश्चन इज विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड इन गिवन स्टेटमेंट। इसमें कौन से प्लानिंग की लिमिटेशन हाईलाइटेड है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय रिस्ट्रिक्टेड बाई द एक्ट ऑफ द प्लानिंग। और इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सी क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय है, यानी एम्प्लॉय की कौन सी क्वालिटी जो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है इस कारण से। सिंपल सा है कि इसमें प्लानिंग का एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, दैट इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। यू नो वेरी वेल, प्लानिंग ये हम एडवांस में तैयार कर लेते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम टू डू। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इससे क्रिएटिविटी हमारी रिड्यूस हो जाती है। अगर हमें कोई इनोवेटिव चीज़ कहनी है, कोई नई चीज़ करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ द प्लानिंग हम वही चीज़ करते हैं जो पहले से तय रहती है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग हमारी क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। एंड अंडर प्लानिंग एम्प्लॉयज़ बिकम मोर कंसंट्रेटेड ऑन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ प्लान्स। एंड प्लानिंग के अंदर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लान्स को लेकर कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ता है। दे डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल। और कोई भी एम्प्लॉय अपनी स्किल को, अपनी क्वालिटी को शो नहीं करा पाता। सो दे डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल एंड इट लिमिटेड्स टू देयर क्वालिटी इन इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। सो सिंपल सा आंसर ये है कि कौन से लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग यहाँ दिख रही है। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन दिख रही है, दिस इन प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी।
एंड सेकेंड इज क्योंकि अंडर प्लानिंग एम्प्लॉयज हैज़ बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस ऑफ प्लान, क्योंकि प्लानिंग के अंदर एम्प्लॉयज़ जो प्लान्स के जो रूल्स हैं, जो प्लान्स के फैक्ट्स हैं, उसी तक लिमिट हो जाता है। उसके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपने स्किल्स और अपनी नॉलेज को, अपनी क्वालिटी को लोगों के सामने प्रस्तुत करे। ठीक है, सो दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 31. Okay, so I hope in today's video we discussed various types of the question from the different chapters, and I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubt or suggestion regarding today's video, please ask me in the online classes as well in the WhatsApp group. Okay, and I request to all the students, kindly solve the practical problem exercise question given in your book very carefully, because all the chapters are equally important and interrelated. ओके, सो आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई करिए। थैंक